الا احوال انہی سے جا کہنا، احوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عباسپور کے ایم ایس ڈاکٹر سردار محمد عارف خان آف بٹل انتقال کر گئے۔ مرحوم کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، علاج معالجہ کے باوجود جان بار نہ ہو سکے اور بالآخر آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم نہایت ہی ملنسار، خوش اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ مرحوم کی وفات پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور بٹل سمیت تحصیل عباسپور اور تحصیل ہجیرہ کی فضا سوگوار تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج آبائی گاؤں بٹل میں ادا کر دی گئی۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی، سابق وزیر حکومت چودھری محمد یاسین گلشن، سابق مشیر حکومت سردار عبدالمنان گوہر ایڈوکیٹ، ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر سردار آفتاب حسین، صدر بار ایسوسی ایشن عباسپور میاں عبدالحلیم ایڈوکیٹ سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی جی ہیلتھ نے 3 دن سوگ کا اعلان کیا۔ اس دوران محکمہ ہیلتھ کی تقریبات معطل رہیں گی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے قبل تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے مرحوم کی زندگی پر اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا، جس انسان نے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے، تو جو میں نے چیز ان میں دیکھی 1.5 سال سے، ایک ڈاکٹر ہونا اور ان کو پتہ ہونا کہ ان کا کینسر سٹیج 4 پہ ہے، اور جس دلیری سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیماری کا مقابلہ کیا، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ان کے سفر آخرت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف صاحب انتہائی نفیس انسان تھے، انتہائی ہمدرد انسان تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ میں اپنی جانب سے بار ایسوسی ایشن عباسپور کی جانب سے ان کے جملہ لوائقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد عارف صاحب ہمارے انتہائی ملنسار، انتہائی قابل اور انتہائی جانبدار ڈاکٹر تھے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی اور یہاں مختلف حیثیت میں کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر جمیل اور صبر عظیم عطا فرمائے، اور ہم ان کے تمام خاندان کے تمام لوگوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے خاندان کے دیگر افراد سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے۔ امیدیں تھی لیکن آج ساری کی ساری وہ موت نے ختم کر دی ہیں، اس لیے کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ڈاکٹر صاحب نیک آدمی تھے، دیندار تھے اور اپنے پیشے میں انتہائی محنت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی بخشی ہوئی تھی۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، میزبان بھی ہوں، سوگوار فیملی سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں اور سارے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس بھائی ڈاکٹر
जिनका नया सफ़र शुरू होने वाला है, उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी और कामरानी बख्शे। आप सारे दुआ करें। वफात हो गई तो हमारे घर में भी उसी तरह का दुख और दर्द और मातम था जिस तरह किसी और घर में, यकीनन करीबियों में ना सही, लेकिन इस तरह की तकलीफ हुई। मैं अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, आप सब हजरात से और डॉक्टर साहब के भाइयों से, डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली से हज़ार ताज़ियत करता हूँ। मुझे मर्ज से मर्दाना बार मुकाबला करते हुए इस दुनिया से चल बसा। ये ऐसा एक नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है जिसका अजाला किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं। ये ना नुकसान सिर्फ इस इलाके का है, इस फैमिली का है, बल्कि ये हमारे पूरे इस ज़िले का नुकसान है। डॉक्टर साहब बड़े मिलनसार, बुलंद अखलाक और बड़े मेहनती आदमी थे। उनकी वफात से इस वक्त हर अशकबार है कि हम जो लोग इससे उम्र में बड़े हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो इनसे उम्र में बड़े हैं, कि उनको इनके लिए ताज़ीती कलमात देने पड़ेंगे। ये बड़े दुख की और दर्द की घड़ी होती है। बहुत का वक्त हम कर रहे हैं, इसमें छोटे और बड़े की कोई तमीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तरतीब होती है और अल्लाह के यहाँ तरतीब है, मैं उसको बेतरतीबी तो नहीं कह सकता। तो बहरहाल ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत, ये इसम बा मसम आते हैं। आरिफ जो है मार्फत वाले आदमी को कहा जाता है। जिस तरह इनका नाम था इस तरह इनके काम थे। गालिब ने इंतहाई नुकसान के साथ आपने भाजे जिनका उसने इत्फाक के साथ नाम आरिफ था, वो इंतहाई 12 साली में उनकी वफात हुई थी। तो गालिब जो शायद थे असदुल्लाह गालिब, तो उन्होंने कहा था क्या फ़र्क पीर, और वो मैं जो उन्होंने अपने भाजे के लिए कहा था वो मैं अपने इस छोटे भाई की नज़र करता हूँ। गालिब का वो रसिया तो उन्होंने कहा था क्या फ़र्क पीर जवां था भी आरिफ। ये सुबह इत्फाक समझी या उसने इत्फाक समझे। क्या फर्क पीर जवां था भी आरफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और कहते जाते हुए कहते हो छोटे अजीज, जाते हुए कहते हो कि क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। इनको जनरल फरदौस में जगह दे और इनकी सारी फैमिली, इनके भाइयों को, इनकी पूरी बरादरी के साथ मैं तज़ियत करता हूँ। और मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। बीमारों को अल्लाह ताला इनको जनरल फरदौस में जगह दे। अब्बासपुर और हजीरा की जितनी भी सफ़े अव्वल के लोग हैं, क़यादत है, वो यहाँ इस जनाजे में मौजूद है। और इस तरह कोटली से लेकर रावला कोट, ये सरदार अरशाद साहब ये बड़े आदमी हैं और इनके ख़ानदान से रिश्तेदारी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हम पर इन्होंने एहसान किया है, इस इलाके पर एहसान किया है कि रावला कोट के किसी घराने से हमारी रिश्तेदारी हो। तो आज वो भी दुखी हैं। मनान गौर साहब से लेके आपने जितने यहाँ यासीन गुलशन साहब थे, दीगर जितने भी मुकर्रीन थे, उन्होंने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया है। लेकिन मैं आपको एक दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा, वक्त नहीं है तो मुझे भी कोई इस चोट से जो है उस तरह की कोई गुफ्तगू की तबीयत नहीं करती है। मुझे बहुत चोट लगी है, जिस तरह मौलाना तहसीन साहब ने कहा, ये इंसान दुनिया में एक किरदार अदा करता है जिसको करैक्टर कहते हैं। उसमें अमाल भी होते हैं और उसमें वो किरदार जो दूसरों तक जो है आसानियाँ पैदा करता है और दूसरों की मुश्किलात में कमी पैदा करता है। और हर एक पेशा दुनिया में इंसान अख्तियार करके इस दुनिया से जाता है, लेकिन किरदार एक ऐसी चीज़ है जो वो पीछे रह जाती है और अमाल जो है वो बंदा अपने साथ लेके जाता है। और जब किरदार पीछे होता है तो वो किरदार जब दोनों हाथ हटा के लोग दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर, आज ये जितनी मखलूक आई है ये पट्टन की तारीख में बहुत बड़ा जनाजा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे उस अजीज की ये बख्शिश का सबब है इतना बड़ा जनाजा। मैं किस किस का जिक्र करूं, मुझे हर एक चेहरा यहाँ नजर आ रहा है और मैं अगर जिक्र करना शुरू करूं तो वक्त दरकार है, जिसको मैं बचाना चाहता हूं आपकी खातर कि आपने दूर दराज जाना भी है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जहां ये अपने पेशे से मुखलस थे, वहां हर आदमी से इनका खुद बहुत अच्छा था, इखलास बहुत अच्छा था। आज
जितनी ये बड़ा जनाजा बड़ा इज्तिमा है, ये इस बात की गमाजी करता है कि इनका इखलाक अच्छा था। और जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 से ज्यादा हदीस या उलमा हैं, ये इखलाक पर हैं कि जिनके इखलाक अच्छे हैं, जिनका उनका किरदार भी अच्छा होता है, उनकी दुनिया भी अच्छी होती है, उनकी आखिरत भी अच्छी होती है। तो अल्लाह ताला इन्हें अपनी जवाहर रहमत में जगह अता फरमाए। इनके जाने से हमें बहुत अफसोस है, हमें दुख है। और यकीन करें, नहीं यकीन ये नहीं आता कि डॉक्टर आरिफ इस दुनिया से चले गए, लेकिन क्या करें, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हम इसको न वक्त और न बेवक्त कह सकते हैं, ये वक्त ही है। जो अल्लाह के फैसले हैं वो बर वक्त होते हैं और उसकी रजा से होते हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खूबसूरत बावका जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला उनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। उनके दोस्त अहबाब, जिस तरह डॉक्टर लियाकत ने कहा, डॉक्टर नहीम साहब ने कहा, डॉक्टर नहीम साहब आते ही मुझे बता रहे थे, यानी इस बंदे ने अपनी बीमारी से जंग लड़ी है। और जिस तरह जहाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जहाद किया है। और फिर जो मैं समझता हूँ कि जहाद करने वाले का जो मुकाम होता है, जब वो शहीद होता है, तो फिर इस शहीद के लिए भी जो मुकाम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस तरह का मुकाम अल्लाह ताला इस हमारे अजीज को अता फरमाए। जितनी मोहब्बत नाल कलमा शरीफ पढ़े, या अल्लाह मरते वक्त उसको ये कलमा पढ़ना नसीब फरमा। सारे पढ़े, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ते जिसे पढ़िया वो तर जावेगा, जिसे पढ़िया वो तर जावेगा। ए मरण वेले कम आवेगा, ए मरण वेले कम आवेगा। इंशाअल्लाह ए कब्र